So yesterday we were talking about the symbolism, right? Symbolic anthropology. So there we have introduced what is symbol, what are the meanings of symbol, how symbols and culture are interrelated to each other, right? Then anthropologist, right, which worked for this symbolism, right? How we started with, कैसे हमने स्टार्ट किया था उसको? So what is symbol, meaning of symbol, then classification of symbols, then classical works, Mary Douglas, right? We start Mary Douglas, Durkheim, Levi-Strauss, right? Pierce, right? Then we discuss about the Saussure, Turner, and finally Clifford Geertz, right? And today the topic is थोड़ा सा वो वापस दोबारा आएंगे. Culture and personality, right? And this school is called as psychoanalytic school of thought, right? Now we are making psychoanalysis, means analysis related to behavior, human behavior. Psycho, what is psychology? Study of behavior. On kar diya. Study of behavior. So psychoanalytic means analysis. Analysis based on behavior, means behavioral analysis. Right? And this subject, culture and personality school, that is started in US, right? In United States around 1930s, right? Psychoanalytical schools that started in US around 1930, right? We discussed about the Ruth Benedict, 1934, right? So it started in 1930 in USA. And it was a psychoanalytical school of thought. And this subject, like culture and personality, it includes sociology, psychology, and anthropology altogether. Right? It school covers sociology, psychology, and anthropology all together, clubbed together. We are talking about the culture, society, personality. So it is socio, anthro, and psycho. So this subject, this thought, this school or thought is an amalgamation of sociology, psychology, and anthropology. But we shall discuss here about this one, right? And basically, as we discussed, though it covers all these three subjects, but basically it focuses on psychoanalytic thought, psychoanalytic interpretation, right? Psychological analysis of culture and personality. So this is the things. So we are talking about culture and personality. Now two words are there. The first word is called as culture. We already discussed there are around 300 different definitions about the culture, right? Different aspects, sociological aspect, the anthropological aspects, around 300 different definitions are. As we say, culture, what is culture? What is culture? The way of life. What is culture? Set pattern of behavior. What is culture? Symbols. What is culture? Culture, what we discuss, acquired by man as a member of society. What is culture? Inherited facts, belief, customs, as Malinowski says. So we have various aspects. But basically, what we say culture is all about way of life, right?
how a person live, that is culture. Anthropologically, culture includes all the aspects of human being, whether it is materialistic or non-materialistic. So in anthropologically, culture manifested by all the activities, all the expression and all the things related to the human being. Right? So that is the culture. Second word, which is called as, and culture is basically associated with rearing children. How a society rear the children and culturation. So culture is actually associated with the rearing of children. Childhood. How they are nurtured, taken care, right? How a society taken care their offsprings, their children, their rearing pattern, right? How they inculcate the values, beliefs, customs, morals, all these things, right? This is rearing of children, right? So this is culture. Second word, what we say, that is called as personality. Right? Now, what is personality? Actually, personality is derived from a word called as persona. Persona means mask or character. Persona represents a mask or a character. Mask or a character. And especially what we see, what an individual what a person feels, behaves and thinks. Means culture, personality is an amalgamation or a mixture of thought, emotions and behavior pattern. So culture is a complex of thought, emotions and behavior. Mix करो तीनों को. So personality is a complex of thought, emotions and behavior in a certain pattern. हो गए तीनों बात. Feel, behave, think. Feel means emotions, behave means behavior, things means thought. Right? So this is the thing. And personality is an individual thing. Personality is an individual, and culture is collective. Culture is collective, and personality is, yes. Now, what is culture and personality? If we say this is the one aspect of personality, what we say personality is a mask or character. Personality means feel, behave, things. Personality means a complex of this and this. It can be all the things which are expressed by a person. Emotions, motives, behave, thought, expression, they all are the part of personality. In personality, actually personality is derived of three words. One is called as तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा मुखौटा, तुम जो हो वो तुम्हारी पर्सनालिटी है. देखो, what you are in dark, that is your character, and what you are in light when everybody sees, that is your personality. So personality is like a mask on character, right? And it is not obvious always that personality and character both are same. It may vary. कि एक आदमी दिन में नमस्कार कर रहा है, हंस रहा है और घर जाके काफी दुखी रहता है, राइट? चार्ली चैपलिन पर्सनालिटी है. चाहे आपके कुछ ऐसे हुए कॉमेडियन हुए जो बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे पर उनके जीवन बड़ा दुख भरा था, राइट? सो पर्सनालिटी इज थिंग व्हाट पीपल सी यू. Character white, how you see yourself. Character what is your in dark, when nobody is seeing you. तो वो तुम्हारा ओरिजिनल कैरेक्टर है, राइट?
तो जैसे गांधी जी कहते थे कि किसी बंदे का कैरेक्टर पहचानना हो तो ये देखो कि वो उस आदमी के साथ कैसे बिहेव कर रहा है जो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, या सबसे लास्ट पर्सन जो सोसाइटी में उसके साथ उसका बिहेव कैसा है। लाइक इन ए होटल, हाउ यू बिहेव टू योर वेटर, आपका कैसा बिहेव है। आप एक सोसाइटी में हो तो सबसे नीचे पायदान पे लोग हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर डेली में कैसा, बिकॉज दे आर द लास्ट स्टेप। वो बताता है तुम्हारा कैरेक्टर। पर्सनैलिटी कैन बी वेराइड विद द टाइम, राइट। तो पर्सनैलिटी इज एक्चुअली डिराइव्ड ऑफ 3 वर्ड, पर्सन, पर्सनल एंड एबिलिटी। पर्सन इज एसोसिएटेड विद वन थिंग दैट इज कॉल्ड self-awareness. The one who is fully aware, right? Who he or she are. That is the person. And that distinguishes between a person and other animal world. Who we are. The awareness. Right? So we have ability to change ourselves, our attitude, thought, behavior, expression, because we know who we are. And if we don't know who we are, we shall react in one way. The cognitive personality, the cognitive behavior, what we have, intellectuality, creativity, imagination, that form the culture. हमने कहा था कल्चर कैसे डेवलप हुई, 3 चीज चाहिए थी। कौन कौन सी थी? इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इंटेलेक्चुअलिटी। 3 थिंग्स, those 3 things are with the person. अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। आप बैठ के सोचते हो मैं कैसा क्यों हूं, why I am behaving like this, can I change it? Yes. दुनिया में व्रत तुम कर सकते हो, सब कुछ होते हुए भूखे रहना ये किसी और के बस की बात नहीं है। संयम बस की बात नहीं, बिकॉज अदर पीपल, अदर में हम क्या बोलते हैं, बिहेवियर। वी यूज एनिमल बिहेवियर, बट फॉर ह्यूमन वी डू न्यूड कल्चर, डिफरेंट थिंग। सो व्हाट इज पर्सनल? पर्सनल इज योर inner core, and this inner core constituted by acculturation, right? By a process of enculturation, process of experiences, process of learning, that constitutes your inner way, reflection, action. देखो, when we study something ना, we study 2 things only, thoughts and actions. कभी गौर करना, दुनिया में 2 चीजें पढ़ी जाती है, थॉट्स एंड एक्शंस, विचार और कार्य। तीसरी चीज बता दो, इधर थॉट और एक्शन। हम 2 चीज पढ़ते हैं। सो इट इज ऑल अबाउट थॉट एंड एक्शन, व्हाट यू हैव, योर थॉट, योर एक्शन, दैट योर पर्सनल। सो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल, द इनर कोर। एंड थर्ड इज अबाउट एबिलिटी। एबिलिटी फॉर व्हाट? ability to express, right? अब इन तीनों को मिक्स कर। पर्सनैलिटी बिलोंग्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ इनर कोर विद सेल्फ अवेयरनेस, राइट? Personality is an expression of inner core or personal with self awareness. अपने आप को जागरूक होकर प्रदर्शित करना आपकी व्यक्तित्व है, राइट? What you are, who you are, how you are, why you are, ये तुम्हारा ये। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज एक्सप्रेशन आना चाहिए, दूसरी चीज तुम्हारे अंदर इनर कोर पुल होना चाहिए, एक्सपीरियंसेस, लर्निंग, थॉट्स, एंड थर्ड इज अबाउट वेरी सबसे ज्यादा जो मांगे जाता है, सेल्फ अवेयरनेस। सो नाउ यू हैव पर्सनालिटी टेस्ट इन सिविल सर्विसेज आल्सो, द लास्ट वन, वहां पर वो यही मांगते हैं, योर सेल्फ अवेयरनेस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वहां पर तुम क्या हो, एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो पहली तुम्हें अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि आई एम एन एडमिनिस्ट्रेटर। सो योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर इनर कोर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, बस यही वो चीज मांग रहे हो। अदरवाइज लर्निंग विल बी देयर, दे विल आस्क यू अबाउट योरसेल्फ, योर सराउंडिंग, स्टेट्स, ऑल द नॉलेज विल बी देयर, राइट? दे टेस्टेड ऑलरेडी योर नॉलेज, नाउ दे वांट टू नो योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस योर इनर कोर विद
सेल्फ अवेयरनेस कि क्या तुम्हें पता तुम कहां बैठ के बोल रहे हो, क्या तुम्हें पता कितना बोलना है, क्या तुम्हें पता क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। आपसे पूछा हु यू आर, आपका आंसर है व्हाट डू यू डू, आई एम अ स्टूडेंट। अब एक बंदे ने इतना बोल के छोड़ दिया, एक ने बोला व्हाट डू यू डू, आई एम अ स्टूडेंट अलॉन्ग विद दिस आई एम डूइंग दैट 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 दैट। अब उस व्हाट में वो हाउ के भी आंसर दे रहा है, वाई के भी दे रहा है। उन्होंने पूछा क्या, व्हाट डू यू डू, हाउ आर यू, हम क्या कहते हैं फाइन, राइट। सो दीज वन वर्ड्स व्हाट दे रिक्वायर्स, स्मॉल आंसर्स, जितना पूछा उतना आंसर। व्हाई दे आर गिविंग यू 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स, उनको पता है तुम किताब लिख सकते हो, बट व्हाई 150 and 250? दैट शोज योर विजडम। छोटी बात बड़ी बात को छोटे शब्दों में कह देना। द थिंग इज दैट, तो ये हमारी पर्सनैलिटी है। सो नाउ यू नो द पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी को कितनी चीजें अफेक्ट करेगी? पहली चीज क्या अफेक्ट करेगी? योर एबिलिटी टू एक्सप्रेस। दूसरा, ऑल दोज थिंग विच कॉन्स्टिट्यूट योर इनर कोर, लर्निंग, थॉट, इमोशंस एंड कल्चरेशन। देन फाइनली योर, so when we talk about personality we talk about everything, a person's awareness, कैसे हो, क्या हो, बॉडी लैंग्वेज क्या है, थॉट क्या है, आपका आउटर पैटर्न कैसा है। दूसरा, तुम्हारे इनर को में लर्निंग क्या है, थॉट क्या, एक्सपीरियंसेस क्या है, किसके लिए जा रहे हो, क्या है। एंड थर्ड, एक्सप्रेस कैसे करना है, थ्रू बॉडी एंड थ्रू वॉइस, वॉइस मॉड्यूलेशन, धीरे तेज, कहां बोलना, नहीं बोलना, तेज बोलना, हल्का बोलना, वॉइस मॉड्यूलेशन। दिस इज पर्सनैलिटी बेटा। तो हमने एक बात की थी, सिंपल ध्यान रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी वी टॉक अबाउट if it is about individual it is called personality, if it is about collective it is called culture. सेम परिभाषा है, सेम डेफिनेशन। इफ वी यूज दैट हाउ एन इंडिविजुअल थिंक्स, फील, बिहेवियर, इट इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। हाउ पीपल इन ए ग्रुप कलेक्टिवली थिंक्स, फील, बिहेवियर, इट इज कॉल्ड कल्चर। तो एक क्लेखोन ने एक डेफिनेशन बोला था। क्लेखोन क्या बोलता है? क्लेखोन बोलता है what culture is for society एक्सप्लेन करना जरा। इसका मतलब कल्चर क्या है? कल्चर क्या है? कल्चर सोसाइटी की क्या है? एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इनहेरिटेड। क्या है? इनहेरिटेड। कल्चर इज इनहेरिटेड, कल्चर शेयर्ड, इनहेरिटेड, बस यही बात कह रहा है। सो ऑल दोज इनहेरिटेड एंड शेयरिंग थिंग्स, सो व्हाट कल्चर इज फॉर सोसाइटी, वे ऑफ लाइफ, एंड दैट इज मेमोरी फॉर इंडिविजुअल। व्हाट इज इंडिविजुअल विदाउट मेमोरी? कुछ नहीं है। अगर इंडिविजुअल मेमोरी हटा ली जाए तो पीछे क्या बचेगा? बचेगा ना मरीज ऑफ एमनीजिया, एसटीएमएल क्यों, फुल टीएमएल, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, फुल टर्म मेमोरी लॉस। व्हाट वी आर? अ मेमोरी। हु वी आर? अ मेमोरी। हम क्या है? एक मेमोरी तो है कि हम कौन है, कहां है, क्या चीज, हमारी मेमोरी तो है, हटा ले तो कैसे? व्हाट कल्चर फॉर सोसाइटी इज मेमोरी फॉर इंडिविजुअल। ये है एक दोनों के लिए कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कल्चर फॉर सोसाइटी एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ मेमोरी फॉर इंडिविजुअल। ये कौन बोल रहा है अपना? इसका नाम तो सुना ही तुमने। सुन, जो सोसाइटी के लिए कल्चर है वही सिग्निफिकेंस इंडिविजुअल के लिए मेमोरी का है। कि जितनी हमारे लिए मेमोरी इंपोर्टेंट उतनी कल्चर के लिए, सोसाइटी के लिए। यस, तो हम सिग्निफिकेंस बता रहे हैं कल्चर का क्या है, दोनों का क्या एक सिग्निफिकेंस है, एक पर्सनालिटी और एक है। तो ये हमारा क्लेखोन बोलता है, राइट। अब कहते हैं व्हाट, हाउ, तो एक चीज हमारे पास सामने कौन आई? वन थिंग इज कॉल्ड एज कल्चर एंड सेकंड चीज इज कॉल्ड एज पर्सनालिटी। कल्चर इज अबाउट शेयरिंग, लर्निंग, थिंग्स, एग्जिस्टेंस, एक्सप्रेशन, बिलीफ, मोरल्स, customs, artifacts, everything.
collectivity. Personality, individual. Individual feels, behaves, thinks, means a part of culture through enculturation. So how personality and culture are interrelated to each other, that is our theme of this culture and personality schools. Right? How culture and personality interact with each other, affect each other. This is the part of our things. Right? So this school, as I told you, that school started 1930 in US. And who was the pioneer? Pioneer was Franz Boas, along with साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैन. क्रोबर क्या बोलता है? साइंस की बात कौन करेगा? क्रोबर. और साइंटिफिक मेथड की बात कौन करेगा? फ्रेंच बॉस. तो साइंस लेके कौन आए? एनालिटिकल मेथड लेकर कौन आए? रोआस एंड कल्चरल रिलेटिविज्म. राइट? कौन लेकर आ रहा है? अमिक अप्रोच. कौन क्या बोलता है? व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजी? मिरर ऑफ मैन. कौन क्या बोलता है? मिरर ऑफ रिफ्लेक्शन. द सेम थिंग. एंड इज द मिरर ऑफ मैन. सो कल्चर एंड पर्सनैलिटी, फ्रेंच बोआस एंड क्रोबर. अब फ्रेंच बोआस एंड क्रोबर, इनके जो डिसिपल्स हैं, उन्होंने इस स्कूल को अप्रोच किया. और वो डिसिपल्स कौन से थे? द इंपॉर्टेंट कल्चर एंड पर्सनल स्कूल थॉट एंथ्रोपोलॉजिस्ट आर Ruth Benedict, Margaret Mead, right? Linton, Gardiner, Corrado Boyce. कार्डिनर बोलते हैं, कुछ इसको कार्डिनर बोलते हैं, जी साइलेंट कर देते हैं. राइट? कोराडू. हाँ, एक ही है. फ्रेंच नहीं लग रहा? फ्रेंच नहीं लग रहा? फ्रेंच नहीं लग रहा नाम से? वास्को डी गामा, कोराडू बोइस, लियोनार्डो दा विंची, ये इटली और फ्रांस उधर के लोग पंच में दी और दा लगते हैं. राइट? अगर ये अरब के होते तो अल, उल, अल और उल. पर्शियन, पर्शियन, अरब्स, अरब में अब्न, इब्न, इब्न उल अरब, इब्न उल अरबी, इब्न बतूता. राइट? और उधर आ जाओ तो नसरुद्दीन सरागे दिल्ली. राइट? हमने मुंतका फुल तवारीख किसने लिखी थी? अब पढ़ेंगे मिडिवल में आएगा. क्या कह रहे हैं? हाँ, they laid the foundation of this school, and these people were the disciples of Franz de Boas. ये फ्रेंच बोआस के डिसिपल्स थे सारे. राइट? जिसमें रूथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड इंपॉर्टेंट है. डायरेक्टली उसके डिसिपल्स हुआ करते थे. एंड दे ऑल आर एक्चुअली अपॉइंटेड बाय द ओवरसीज स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट. एक मतलब कि डिपार्टमेंट था जो अदर कंट्रीज के स्ट्रेटजी को फॉलो करता था कि वो लोग क्या सोचते हैं, क्या उनका चीज है. वो डिपार्टमेंट इनको प्रोत्साहित कर रहा था, बिकॉज दैट वाज द टाइम व्हेन वॉर वाज अबाउट टू कम. 1940s में 1939 में तो वॉर हो ही गया. सो दैट वाज द टाइम जब लोगों का कंपटीशन चरम पे था. नाजिज्म, फासिज्म, वन टाइम कॉलोनिज्म और ब्रिटिश एंड फ्रेंच एंड पोर्तुगीज. तो ये सब शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थी. एंड यूएस वाज इमर्जिंग. यूएस वाज इमर्जिंग एज ए न्यू कैपिटलिस्ट स्टेट जो इकोनॉमी में बहुत पावरफुल था. राइट? तो उस समय एक नया दौर चल के आप लोगों की कैरेक्टर, पर्सनालिटी और उनके थॉट को किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, ताकि कल अगर वॉर हो तो आपको पता लगे कि उसका बिहेव कैसा है. उस बिहेवियर के हिसाब से
हम लोग वैसे स्ट्रैटेजी बनाए, राइट? क्योंकि बिहेव, आप मान लो आपसे ऐसा आदमी मिलने आ रहा है जो बहुत गुस्से वाला है, आप पहले अपना माइंडसेट तैयार करोगे कि भाई मुझे इससे, आपको मान लो आदमी बिल्कुल कूल काम है तो आप वैसे ही बात करोगे। यही देशों के साथ होता है। इफ वी नो द करेक्टर ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री कि भाई इनका नेशनल करेक्टर ऐसा है, तो तुम ऑलरेडी वैसी स्ट्रेटजी के साथ चलोगे। क्योंकि समय वॉरफेयर में आपको मालूम है जो आर्मी थी उसका बहुत डिसाइसिव रोल होता था। मेन लड़ाई तो मैदान जंग में ही होती थी। लाइक एट द टाइम, तुम्हें मालूम है इन एंशिएंट टाइम वॉर वाज वेरी प्रॉफिटेबल टू कैप्चर रिसोर्सेज, राइट? आपको क्या करना है, 200 लोग इकट्ठे करने, 10,000 लोग इकट्ठे करने, उन लोगों को कहना भाई जो लूटेंगे वो आधा आधा कर लेंगे, प्लस मैं आपको पैसा भी दूंगा। इकट्ठे करके चले गए, मरा कौन? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लोग मर रहे हैं, मतलब सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज मर रहे हैं, राइट? सिविल्स मर रहे हैं, उसके बदले में तुम्हें पूरा का पूरा लैंड मिल रहा है, लैंड के सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं। सो वॉर वर प्रॉफिटेबल, सो वॉर अकर्ड फ्रीक्वेंटली कि अगर आपको किसी भी जगह का रिसोर्स कैप्चर करना हो तो वॉर कर लो। आज उल्टा है, वॉरफेयर बहुत कॉस्टली हो गया, बहुत कॉस्टली हो गया कि तुम 100 लगाओगे तो 20 रुपए मिलेंगे। तो आजकल वॉरफेयर आसान नहीं है। रशिया से जाके पूछ लो यूक्रेन जाके पूछ लो कि वॉरफेयर का मतलब क्या हो रहा है। वन अब तक तो उड़ गए होते, थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं हो रहा है, सब बैठ के पता करे। भारत पाकिस्तान क्यों नहीं, सब बैठ के पता कर रहे हैं कि वॉर होने का मतलब अगर उन्होंने 2 बम डाल दिए, मान लो 2 बम डाल दिए, जैसे हमने लाहौर कराची में डाल दिए, उन्होंने आपके मुंबई और दिल्ली में ठोक दिए, तो तुम्हें अगले 25 साल लगेंगे खड़े होने में। तुम्हारा न्यूक्लियर की वजह से सारा खराब, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गया, राइट? अब वॉरफेयर सारा के तुम्हारा कम्युनिकेशन गया, तुम्हारे 2 सैटेलाइट उड़ा दिए मैंने, तो वॉरफेयर इतना महंगा हो गया ना, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, तो पीपल से, अब देखो चाइना इतना एग्रेसिव होते हुए भी कभी भी आज तक इससे आगे नहीं बढ़ता, और उसने क्यों अब तक हमारे साथ में कोई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की? क्यों हमारे सैनिक उसके नहीं मुक्का मुक्की लड़ रहे हैं, मुक्के हाथ पांव चल रहे, क्यों? मैं तुम्हें कह रहा हूं टीटी में मुक्कों से क्यों लड़ा जाए, वहीं लगा तो फाइटर ट्रेन में नहीं, नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी नाउ, क्योंकि मालूम है वॉर बहुत महंगा पड़ेगा दोनों को। चाइना ने कोई वॉर लड़ा अब तक? ताइवान के लड़ा, तिब्बत के साथ, इंडिया के साथ, बस वो इकोनॉमी चलता है। They know very well, these people know very well the cost of war। 25 साल पीछे चले जाओगे, राइट? 25 साल सारी कंपनियां भाग जाएगी तुम्हारे से, तुम्हारे से सारा इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, लोग पैसा निकाल लेंगे, तुम्हारा एफडीआई गया, एफआईआई गया, मतलब तुम्हारी अंदर की पूरी अंदर की इकोनॉमी खत्म, राइट? और ऊपर से फिर हथियार खरीदना शुरू करो, 2 कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, आधा हथियार नेशंस उनको बेचेंगे, आधा तुमको बेचेंगे, उसको गोली बेचेंगे, तुमको बंदूक बेचेंगे, फिर तुमको कहेंगे तुम बंदूक लो, उसको कहेंगे तुम गोली ले। सो दिस हैपनिंग, दिस हैपनिंग। So war is good for those who sail the war. Yes, USA, Russia, Germany, France, it's good for them. मैं क्या कह रहा हूं, those who sail the war। और करना किसको करना है? अफ्रीका में। कहां करना है? मिडिल ईस्ट में। कहां करना है? गाजा इस्राएल में। वरना तुम्हारा हथियार कौन खरीदेगा? खुद ही भड़काओ और खुद ही बेचो, दैट्स द थिंग। सो आजकल वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। पहले क्या होता था, लैंड रिसोर्सेज कब्जा करना है, क्या 10-12 हजार लोग ही तो मरने, 15,000 लोग ही तो मरने, मार दो, कौन सा अपने पेट से जा रहा है? राजा जी जिंदा, जाओ नए नए भर्ती रिक्रूट कर लो, और इतना सारा रिसोर्सेज एक साथ मिल गया। सो दिस इज द थिंग। सो दैट वाज द टाइम वेयर साइकोएनालिसिस इमर्ज एज ए प्रोमिनेंट स्कूल फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। और उसमें लीड कौन कर रहे थे? यूएस में कौन है? फ्रेंच बोआस एंड क्रोबर। तो उस समय इन्होंने रूथ बेंडिक्ट है, मार्गरेट मीड है, लिंटन है, कार्डनर है, कोराडो बुएस है, ये मेन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हुए, और ये कह रहे हैं हाउ कल्चर एंड पर्सनैलिटी इंटरैक्ट टू ईच अदर, हाउ कल्चर अफेक्ट्स दी, हाउ पर्सनैलिटी अफेक्ट्स दी, हाउ बोथ आर अफेक्टिंग। 3 स्कूल बन गई, राइट? फर्स्ट, हाउ पर्सनैलिटी अफेक्ट द कल्चर, how culture affects the, how both affects each other। बस ये 3 पर्सनैलिटी बन गई, राइट? हेलो, मैं बात करता हूं क्लास के बाद।
क्लास के बाद। एक तो हमारे प्रिंसिपल साहब, चलो लेट्स ओके। सो दिस नाउ वी शैल गो वन बाय वन। नाउ दिस इज द टाइम व्हेन अ प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट dominated the world and the name was Sigmund Freud. That was the era of Sigmund Freud. तो हर जगह तुमको कौन मिलेगा? साइकोलॉजी। उससे पहले कौन मिला तुमको? फंक्शनल। उससे पहले कौन मिला तुमको? इवोल्यूशनरी। से पहले कौन मिला? डिफ्यूजनिज्म। तो इवोल्यूशनरी, डिफ्यूजनिज्म, उसके बाद कौन आया? अपने फंक्शनलिज्म। अब कौन आया? साइकोलॉजी। राइट। सो दिस वाज एन एरा, जब एक बहुत बड़ा नाम वर्ड में चल रहा था एंड द नेम वाज सिगमंड फ्रॉइड। एंड सिगमंड फ्रॉइड क्या बात करता है? हमने बात की थी, किसी बात करता है? अरे ओडिपस कॉम्प्लेक्स, मेल जेलेसी, राइट? जेलेसी हमने बात की थी उसकी। ही टॉक अबाउट टोटेमिज्म एंड टैबू। व्हाई टोटेमिज्म, व्हाई टैबू? क्यों बात करता है? उसने कहा था कि सबसे पहले क्या होती थी? होड कल्चर, होड फैमिली, ओनली फादर ओन्ड ऑल द वुमन। बच्चे जेलस हो गए, फादर को मार के खा गए। फिर उनको क्या हुआ? गिल्ट हुआ। इन दैट गिल्ट उन्होंने क्या किया? आगे से कहा क्या? पहली बात तो ये कि हम लोग आज के बाद जो भी हमारे यहाँ की वुमन है उनको अपनी मदरली फॉर्म में मानेंगे। सो पहली चीज क्या स्टार्ट हुई? एक्सोगेमी। हम अपने ग्रुप में शादी, राइट। दूसरी चीज क्या स्टार्ट हुई कि हम लोग क्या करेंगे? फादर को उन्होंने क्या बना दिया? एक पवित्र आइकॉन बना दिया। और इसको खाना क्या हो गया? टैबू। बट एक दिन खाएंगे। किस दिन? जिस दिन होगा सेक्रीफाइस। सो स्टार्टिंग ऑफ सेक्रीफाइस फीस्ट, क्या वर्ड बोलेंगे? सेक्रीफाइस फीस्ट। स्टार्टिंग ऑफ सेक्रीफाइस फीस्ट, स्टार्टिंग ऑफ टोटेमिज्म, स्टार्टिंग ऑफ टैबू, एक्सोगेमी, दे ऑल स्टार्टेड विद अ वर्ड कॉल्ड एज ओडिपस कॉम्प्लेक्स। इसको इडिपस बोलते हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स। ओइडिपस तो बाद में बोलने पड़े इडिपस। इडिपस कॉम्प्लेक्स मींस अ कॉम्प्लेक्स ऑफ a relation between mother and a child, where a child jealous to his father, right? पर इसी से उसने बताया कि दुनिया में कैसे एक यंग बच्चा जो होता है ना, वो कैसे एग्रेसिव बिहेव करता है, वो उसके फादर के साथ रिलेशन अच्छे क्यों नहीं है, और बाद में जाके कैसे वो चेंज होता है। उस सब के पीछे क्या क्या बताया था उसने? यस। So that was the time when Sigmund Freud analyzed the personality of young ones on the basis of a complex relationship between a father and a child, a mother and a child, a family. How family behaves to each other. How these totem taboos, behaviors came into existence. Yes, Sigmund Freud. So in this way culture हम लोग evolved. इसके हिसाब से कल्चर अनसाइंटिफिक है, इरेशनल है। क्या अगर इस तरह कल्चर पैदा होती है साइंटिफिक है, रैशनल है? नहीं, जस्ट इरेशनल। इडिपस कॉम्प्लेक्स की वजह से कल्चर पैदा हुई, लोगों ने एक्सोगेमी स्टार्ट की, किसी को मदर मानना स्टार्ट किया, होड कल्चर से आगे कल्चर डेवलप हुई। इसके हिसाब से तो कल्चर इज नॉट साइंटिफिक, जबकि हम आज तक क्या पढ़ते हैं? कल्चर इज साइंटिफिक, राइट? एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, ये बात कर रहा हूं। So that was the time. जिस समय हम ये बात कर, Sigmund Freud was the head. So all people were influenced by the psychology of this Sigmund Freud. And to them, culture and personality, they interact with each other and affects each other. अब जैसे हमने कहा, हमने बात किया कल्चर की, राइट? राइट? तो कल्चर में चार चीज है। Sorry, we were talking about the culture तो हम पढ़ चुके। पर्सनैलिटी इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट वेरिएंट्स। कैसे? अब पर्सनैलिटी को सबसे पहले कौन डिफाइन करेगा? किसकी वजह से इंपैक्ट होती है? सेकंड, तीसरा, चौथा। So personality is affected by these four characters, these four
different characters. Environmental factors, right? These are the factors by which a personality improved. Hello? Hello? लोकेश भाई क्लास में हूं मैं भी, है बात मत करता हूं. So culture, we know what factors affect culture. We already discussed about the culture. Acculturation, deculturation, culturation, pattern, things, all things. Now about the personality. So personality, दो part हो गए ना, culture and personality. Culture we discussed. Now the part of personality. So personality is affected by 4 different factors: environment, culture, heredity, and experiences. चार बात है. अब देखो गौर करो. कल्चर में क्या है? व्हाट इज कल्चर? हमने क्या किया? रीडिंग चिल्ड्रन. और पर्सनालिटी, अगर मैं कहूं व्हाट कल्चर एंड पर्सनालिटी आर, आप कहेंगे कल्चर एंड पर्सनालिटी, हाउ rearing of children affects the human behavior is an interrelation of culture and personality. Because what is this and what is this? Behavior, psychology, human behavior. So how rearing of children impact the behavior of an individual, ये हमें पढ़ना है. How culture affect personality और personality affects the culture. अब हमने अभी जस्ट ऐसे कहा कि ये 4 चीजें हैं पर्सनालिटी को चेंज कर. कौन सी? कल्चर तो हमें पता है. पर्सनालिटी, इन्वायरमेंट, कल्चर, हेरिटेज. हाउ इन्वायरमेंट बताओ जरा. हाउ इन्वायरमेंट अफेक्ट्स द पर्सनालिटी. In a set environment conditions, people brought up in a specific set of thought. Like you are living in desert, you are living in cold area, you are living in subtropical, tropical, temperate, you will have a different type of personality. Why so? The limitations set by the environment. A person living in Andaman, person living in Fiji, person living in coastal area, person living in the central plain, person living in the mountains, क्या सबकी एक जैसी पर्सनालिटी होगी? Yes. The resources provided by the environment, the boundary set by the environment, both will affect the personality. Think, feel and behave. Miss your thought, your emotions and your learning experiences. तो पहली बात, हाउ इन्वायरमेंट. तो जब हम कल्चर पर्सनालिटी पढ़ेंगे ना, तो ये चीज भी पढ़ेंगे कैसे इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट ए पार्ट ऑफ पर्सनालिटी. हाउ कल्चर और इन्वायरमेंट अफेक्ट्स दी. फर्स्ट थिंग. सेकंड चीज क्या है? कल्चर क्या है? वे ऑफ लिविंग, मिस रीडिंग. हाउ चाइल्डहुड rearing the child and culturation impact the personality. कि जैसे वातावरण तुमको बड़ा किया गया. Say Ruth Benedict talks about the Japanese national character. उनका the aggressiveness of Japanese adult is due to the very strict toilet, right, practices in childhood of the Japanese children. इतने आपको अपने टॉयलेट को खुद साफ करना है, टॉयलेट की सफाई, जगह सब कुछ एकदम क्लीन होना चाहिए. इतना स्ट्रिक्ट सिस्टम है वो कि बच्चा एकदम, मतलब लाइक व्हाट हैपेंस, जैसे हम बात करेंगे आगे रूथ बेनेडिक्ट का. सो टू रूथ बेनेडिक्ट, जापानी नेशनल कैरेक्टर इज एक्चुअली इन 2 different वे, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट. इन चाइल्डहुड दे आर नर्चर्ड एक क्राइसेंथेमम, एक फूल की तरह उनको केयर किया जाता है. काइंड, लव, प्रॉस्पेरिटी, जेनरसिटी, फुल केयर, लुक आफ्टर, हर चीज जो उनको चाहिए, एवरीथिंग इज अवेलेबल. सो टिल चाइल्डहुड, right, they are cared as a flower of chrysanthemum. But when a person get adolescent, it gets changed. Now they need to, they put under a specific discipline of their family tradition, and they need to change their behavior, limit their behavior,
according to their family traditions. So now they become a sword. एक तलवार की तरह. Now they do not have the cooperation of elders. So now they need to develop all the discipline inside. तो उसने कहा कि कैरेक्टर दो चीजों से आता है. They are calm, cool, disciplined when you see them, and they are brutal, aggressive at the time of war. Why so? This chrysanthemum and sword. That strict toilet practices what they have. कि आपको बिल्कुल ये करना, तो वो वहां फूट के बाहर आता है. Right? So how culture affects the personality. In different countries you find different type of people. तीसरी चीज क्या कहता है? हेरिडिटी. कुछ चीजें तो तुम इनहेरिट करते हो, जैसे तुम्हारा स्टैचू, तुम्हारा हाइट, राइट? इससे तुम्हारी पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है. पिग्मी हो, क्या तुम कोल्ड रीजन के हो, लंबे चौड़े 6 फुट 4 इंच के हो, या तुम ड्वार्फ हो, या तुम मीडियम हाइट में हो, तुम्हारी बॉडी कैसी वैसी तुम्हारी पर्सनालिटी शो करेगा. सो सम हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो तुम्हारे अंदर है, एंड दैट कल्चर व्हिच वर इनहेरिटेड बाय द कल्चर. कल्चर ने कुछ चीजों को इनहेरिट किया जो तुम्हें दी जाती है कि कैसे कैसे आपको जीना है, कैसे करना है, वो सब इनहेरिट हो रहे हैं. तो वो लास्ट में क्या है? तुम्हारे पर्सनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस. सो टू फॉर्म, to develop and to maintain a personality, what factors are responsible? Yes, इनको ध्यान रखना, ये बुक में नहीं आएंगे तुम्हारी. सो अब कभी भी पर्सनालिटी की बात हो ना, हाउ पर्सनालिटी, अब लोग कहते हैं जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. साहब क्या ये सब करेक्टर तुम्हारे पास है? क्या तुम पर्सनालिटी डेवलप कर लोगे? पर्सनालिटी इज नॉट ए सिंगल ट्रेड थिंग भाई, मल्टी ट्रेड्स है. फील, थिंक, बिहेव एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, आइडेंटिटी फैक्टर, एक्सपीरियंस फैक्टर्स. फिर भी कॉलेज खुली, स्कूल खुली हुई है. सो फॉर्मेशन ऑफ पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनैलिटी के लिए वेरियस फैक्टर्स जिम्मेदार है. तो अब ये कल्चर हो गया, पर्सनैलिटी हो गया. अब हम जाते हैं स्कूल्स में. सो फर्स्ट वी टॉल्ड अबाउट द सिगमंड फ्रॉइड. सिगमंड फ्रॉइड ऑन द बेसिस ऑफ साइकोएनालिसिस he gave some anthropological concepts in terms of totemism, in terms of taboos, right? How totemism came into existence, how taboos came into existence on the basis of Oedipus complex, the main theory about the interaction, feminine, all this. Afterwards, the first name which came into highlight was Ruth Benedict, right? Ruth Benedict. The disciple of Franz Boas. She was the disciple of Franz Boas. Ruth Benedict belonged to culture and personality schools. So we already defined what is culture, what is personality. Culture thing, जैसे हमने कहा culture personality दोनों बात कर ली, right? ध्यान रखना दोनों. And second thing जो हम सिंपल कह सकते हैं, what is personality? What is personality for an individual is the culture for a society. अब तुम समझो इस चीज को. What is personality for individual is a culture for the way of life. क्या है? Yes, इस चीज को भी कोट करके रख लो. ये चीज तुम्हारे आंसर देने में बड़ा मजा आएगा. जैसे हम कहते हैं ना कि what memory is for individual is culture for society. अब ये लिखो, what is culture for the society is personality for the individual. It means according to this what it says, इसके हिसाब से क्या हो गया? That culture and personality are not different to each other. They are indifferent to each other. They are two facets of a coin, right? So what culture is for society is personality for individual. जब आप कलेक्टिव की बात करोगे तो वर्ड क्या यूज कर लोगे? कल्चर. जब इंडिविजुअल की बात करोगे यूज क्या करोगे? पर्सनालिटी. So personality, culture are indifferent to each other. So all those factors which affect culture will affect the environment, right? Second कर लो inherited. तीसरा आपने क्या कहा? Experiences. अब culture personality पे एक ही है, right? So this is the thing. So culture, personality, schools works in that one. तो ये चीज याद रखना. ये लिंटन बोलता था. कौन बोलता था? लिंटन बोलता था.
what culture is for what culture what people what for people or society culture, what culture is for the people or society is personality for the individual. So to Linton, there is no difference between culture and personality. Both are indifferent to each other. Both are two facets of a coin. बस फर्क कहां पड़ रहा है? Individual versus right. So रूथ बेनेडिक्ट का सबसे पहला रूथ बेनेडिक्ट की 3 बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुम्हें याद रखनी है. द फर्स्ट बुक वॉज द पैटर्न्स ऑफ कल्चर. हमने पढ़ा था ना कल्चर पैटर्न, कल्चर ट्रेट, कल्चर कॉन्फिगर, कल्चर ट्रेट, कल्चर कॉम्प्लेक्सेस, कल्चर पैटर्न एंड कॉन्फिगरेशन ऑफ कल्चर्स. राइट, दिस इज द पैटर्न्स ऑफ कल्चर. उसने बताया था कैसे कल्चर ट्रेट जो है वो अरेंज होते हैं कल्चर कॉम्प्लेक्सेस में, कैसे कॉम्प्लेक्सेस अरेंज हो रहे हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में, और कैसे वो पूरी कल्चर एक कॉन्फिगरेशन बनाते हैं. और वो कॉन्फिगरेशन ऑफ कल्चर क्या कहलाता है? जेनेसिस ऑफ कल्चर. और इसी तरह से हर एक कल्चर में ये ट्रेट स्पेशली अरेंज होते हैं, और इस अरेंजमेंट के हिसाब से हर कल्चर दूसरी कल्चर से डिफरेंट भी होती है और सेम भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ दीज पैटर्न. क्लियर? सो पहली बुक कौन सी होगी? द पैटर्न्स ऑफ. दूसरी बुक इसकी है, अरे भाई साहब, दैट इज यस क्राइसेंथेमम एंड दी. इसकी 2 ही बुक है रूथ बेनेडिक्ट की. फर्स्ट इज द पैटर्न ऑफ कल्चर एंड सेकंड द क्राइसेंथेमम एंड द सोल्ड. अब हम 1 by 1 रूथ बेनेडिक्ट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट. रूथ बेनेडिक्ट मार्केट मीट में पूरे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से इसको करना. ठीक है, लेट्स स्टार्ट 1 by 1. फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट इंपॉर्टेंट contribution made by Ruth Benedict was about the patterns of culture. To Ruth Benedict, right, in a given culture, culture traits. What is traits? The basic or the most smallest part of a culture, right? The smallest individual or the basic part of a culture is called as culture traits. जैसे हमने कहा किचन के अंदर के स्पून, a tongue is a culture trait, right? These culture trait in a culture arranged in complexes. ये कॉम्प्लेक्स क्या है? अ किचन. कॉम्प्लेक्स क्या है? किचन. ट्रेट क्या है? उस किचन के अंदर का टूल. सो अ ट्रेट किस में पैटर्न हुआ? कॉम्प्लेक्स. दीज कॉम्प्लेक्सेस मेक अ पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न which is called as the specific pattern of traits and complexes in a culture forms a culture configuration which is specific for a specific culture, right? ये बात कर रहा हूं. traits and complexes in a culture, traits and complexes in a culture, right, arranged in a specific pattern which form culture configuration of a particular culture which is ideal for that particular culture. And this culture configuration of a culture is called as genesis of culture. Genesis, G-E-N-E, genesis of culture. कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि किस तरह से पूरी कल्चर बनी हुई है. हम किसी का कॉन्फ़िगरेशन कैसे कहते हैं? इसका कॉन्फ़िगरेशन बताना.
कहते हैं ना कि जस्ट शो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस, ग्रामेटिकल वर्ड है कॉन्फ़िगरेशन मींस पैटर्न, कैसे अरेंज हुए, पैटर्न किससे बना, कॉम्प्लेक्सेस किससे बने। तो सिंपल बात में लिखूं तो अगर ऐसे लिख दूं कि ये ट्रेड्स है, मान लो ये ट्रेड्स है, इन ट्रेड का स्पेशल अरेंजमेंट ने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिए। और अगर ऐसे से कॉम्प्लेक्स किसी कल्चर में आ जाए, राइट, ये हो गया, ये किस पैटर्न में अरेंज है, ये पैटर्न हो गया, और ये पूरा क्या बन गया, कल्चर, यस, कॉन्फ़िगरेशन। सो इट इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कल्चर वेयर ट्रेड्स आर especially patternized in complexes. So how the traits and complexes are patternized in a culture, that is called as culture. Yes. So in each and every complex, if we study the traits and complexes, हम culture के बारे में जान सकते हैं, right? तो ये इसका culture configuration का सीन है। तो वर्ड आता है culture configuration, patterns of culture, and so how we know the pattern of culture, to know the traits and complexes. अगर मैं किसी कल्चर का पैटर्न जानना है कि इस कल्चर का पैटर्न क्या है, राइट, किस तरह की कल्चर है, इसका पैटर्न क्या है कल्चर का, अगर इसके ग्रोथ में है, डिमिनिश में है, किस तरह का पैटर्न है, तो हमें क्या जानना होगा, अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, और कॉम्प्लेक्स के अंदर स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ ट्रेट्स। कैसे छोटे छोटे एलिमेंट्स कल्चर के इन्होंने सेट कर रखे, जैसे मैरिज कैसे हो रही है, मैरिज से फैमिली कैसे बनी, फैमिली से किनशिप कैसे बना, किनशिप से सोसाइटी कैसे बनी। तो सोसाइटी का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें अगर आपको सोसाइटी का पता करना है तो आप कैसे पता करोगे, ट्रेड्स, और वो ट्रेड्स कैसे बनाए हुए, रूल्स रेगुलेशंस, तरीके क्या है, पैटर्न क्या है, तरीका, सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर, नॉर्म्स। सो पैटर्न को नॉर्म्स वर्ड से लिया गया है। अरेंजमेंट, पैटर्न क्या है, अरेंजमेंट। हम कहते हैं तुम्हारे यहाँ पे पैटर्न क्या है, मतलब तुम्हारे का मेथड क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, हम क्या पूछते हैं, पैटर्न ऑफ, इसने क्या वर्ड लिया, पैटर्न ऑफ कल्चर, राइट, मतलब तरीका क्या है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ कल्चर, तुम्हारी कल्चर का तरीका क्या है कि भाई हमारे यहाँ के ट्रेट और कॉम्प्लेक्स, ये ट्रेट कैसे अरेंज है और उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्सेस कैसे अरेंज, मतलब है हमारे फैमिली, मैरिज, किनशिप, पॉलिटिकल, ऑर्गेनिक, सोसाइटी कैसे अरेंज किए गए हैं, कौन किससे डोमिनेंट है, कौन किसके हिसाब से बना है, राइट। तो इसी बात को अगर मेलिनोव्स्की बोले तो कहता है नीड के हिसाब से, पैटर्न कैसा, नीड के हिसाब से, और मैं डर्टली ब्राउन बोले तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पीपल, स्ट्रक्चर के हिसाब से, राइट। अगर मैं लेवी स्ट्रॉस हो तो क्या बोलेगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल ह्यूमन माइंड, वो तो ही बोलेगा। टाइलर क्या बोलेगा, इवॉल्वमेंट। डिफ्यूजन वर्ड क्या कहेंगे, ट्रेड्स तो क्या हो रहे हैं आपस में, डिफ्यूज हो रहे हैं, अप्रोच, डिफरेंट अप्रोच, एंड व्हाई दीज ऑल आर अरेंज्ड इन ए मैनर। अगेन बात, दरखाम क्या बोलेगा, ये सब ऐसे क्यों है, किस चीज के लिए होने सारे, अगर दरखाम से कोई पूछे किसके लिए, किसके लिए, दुर्खिम ने कौन सा वर्ड यूज किया था, यस, क्या किसके लिए, मेलिनोव्स्की क्या बोलेगा, नीड, ब्राइटली अपन क्या बोलेगा, यस, समझ में आ गया। लेवी स्ट्रॉस क्या बोलेगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ माइंड। इन लोगों का माइंड भी इसी वजह से ऐसे कल्चर है, कल्चर इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन माइंड। तो लाइक माइंड लाइक कल्चर, तो वो साइको की बात करेगा, क्लियर, बस ये बात है। सो इसने कहा कि ये ट्रेट अरेंजमेंट है। सो किसी भी कल्चर का पैटर्न जानना, होल कल्चर को क्या नाम दिया हमने, ट्रेट्स, कॉम्प्लेक्सेस एंड पैटर्न क्या बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, और पूरा कॉन्फ़िगरेशन क्या बना देगा, जेनेसिस ऑफ कल्चर, मतलब कल्चर पैदा कैसे, ये आप पूरा पता कर लो। तो पहले ट्रेट, ट्रेट के बाद कॉम्प्लेक्सेस, पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन एंड जेनेसिस। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग गिवन बाय। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, दैट कल्चर इज क्वाइट साइंटिफिक इन नेचर, where all the trait and complexes arranged specifically. It means it discarded the theory of Sigmund Freud. फ्राइड क्या बोलता है, कल्चर इज अनसाइंटिफिक, इरेशनल। वो कैसे पैदा हुई कि जी इडिपस कॉम्प्लेक्स से इनको मां मान लिया, बाहर शादी करने लग पड़े, परिवार बन गए, बेज टैबू टैबू कोई नहीं। ये कहता नो, दिस थ्योरी डिस्कार्टेड द थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रॉइड that culture is unscientific and irrational. No, culture is quite scientific and rational.
because it based on set pattern, specific arrangement, complexes. तो ये वो थे जिन्होंने कल्चर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखा है, राइट? So this describes the theory of Sigmund Freud. So this was the first contribution made by Ruth Benedict. ये पहला उसका चीज हुआ. दूसरा, now the second contribution. Second contribution was that on the basis of this configuration, on the basis of the configuration, उसने कहा कि दो तरह की पर्सनैलिटी होती है. किसी भी कल्चर में अगर सेट पैटर्न देखें तो दो तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है. तो जी क्या पर्सनैलिटी हो सकती है कि पहली को उसने नाम दिया, दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोला, अपोलोनियन. राइट राइट. ये जो कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन है, इससे दो तरह की पर्सनैलिटी निकल के आती है कि तुम्हारी कल्चर के अंदर जो एलिमेंट्स है उसको किस तरह से अरेंज किया गया है, उसके पीछे क्या पैटर्न बिहेवियर है, सेट पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, उसके हिसाब से एक तो कौन हो गए, अपोलोनियन, और दूसरों को उसने क्या नाम दे दिया, डायनोसियन. राइट, डायनोसियन. और उसने 3 ट्राइब के अंदर अध्ययन किया, दैट इज जूनी. राइट, जूनी ट्राइब थी, जूनी के बाद में पीमा, और एक कौन सी थी, कोचिती. कल्चर पैटर्न, कॉन्फ़िगरेशन. और इस पे उन्होंने दो चीज का देखा, अपोलोनियन एंड, टू टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज, अपोलोनियन एंड डायनोसियन. नाउ द पर्सनैलिटी फर्स्ट, अपोलोनियन. टू रूथ बेनेडिक्ट, अपोलोनियन काम, disciplined and happy. Cool, calm, disciplined, happy, no competitiveness, uncompetitiveness, idealistic, right? Cool, sober, decent behavior. So these are the people. Apollonian personalities are those personalities which are quite cool, calm, disciplined, right? Not harming others, non-competitiveness के लोग हैं. दूसरा वर्ड किसने उसने कौन सा दिया, दैट वाज डायनोसियन. डायनोसियन पर्सनैलिटीज आर दोज पर्सनैलिटी विच आर aggressive and competitive. Aggressive and competitive. Aggressive and competitive. And for these उन्होंने दो ट्राइब को चुना. अपोलोनियन के लिए उसने कौन सी ट्राइब को चुना, जूनी, अमेरिका, अमेरिकन ट्राइब, राइट. और दूसरी ट्राइब कौन सी थी, फिर वही आई, कौन सी, हमने पहले ही पढ़ा, उनको पढ़ा है ना, चिफ्टन, स्ट्रेटिफाइड, क्या कहते हैं हैदर, जिसमें कौन सी सिस्टम है, पोटलास. कौन सा सिस्टम है, पोटलास. सो सी कंपेयर्ड टू डिफरेंट ट्राइब on the basis of two different personalities of people. One to her Apollonian and second to her was Dionysian. अब ये जो जूनी ट्राइब के लोग थे वो बहुत कूल, काम, डिसिप्लिन, अनकॉम्पिटिटिवनेस, नो लीडर एट ऑल. दे ऑलरेडी अवॉइडेड टू सेलेक्ट और इलेक्ट अ लीडर. वो लीडर में नहीं चुनते थे क्योंकि उनको पता लीडर आती वो डोमिनेंट सुपर वाली पार्ट हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड वाला पार्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटी पैदा हो जाएगी. नो, अ ट्राइब इज लीडर इटसेल्फ, अ सिंपल इगैलिटेरियन सोसाइटी. ड्यू टू द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल, people are very quiet, calm, happy, joyful.
अनकॉम्पिटिटिव, तो जो भी होता था आपस में कर लेंगे. सो दीज पीपल ड्यू टू दैट पर्सनैलिटी दे हैव अ कल्चर which is quite uncompetitive, ideal, happy, cool and calm. So this personality affect the culture and converted culture into a happy and uncompetitive culture. This shows the impact of personality over culture. तो जैसे लोग वैसी कल्चर, जैसे लोग वैसी, हमने पहले पढ़ा था ना, पर्सनैलिटीज फॉर इंडिविजुअल, कल्चर फॉर, तो उसने कहा जैसे लोग वैसी, राइट. So this school cared how इस स्कूल क्या बोलते हैं? द स्कूल हाउ पर्सनैलिटी अफेक्ट्स कल्चर. हाउ पर्सनैलिटी अफेक्ट्स कल्चर, कि जैसे लोगों की पर्सनैलिटी है, क्योंकि पर्सनैलिटी में मैंने कहा पर्सनल कल्चर मिलेगी तो दो चीज मिलेगी, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन टू द ह्यूमन बिहेवियर. तो ये कहते हैं बिहेवियर कैसे रीडिंग को अफेक्ट कर रहा है. मां बाप खुश तो बच्चे खुश, उल्टा हो जाए तो, यही बात कह रहा है. मां बाप खुश तो यस, और ना हो तो पंगे. ये बात ये कहता है. Ruth Benedict from school will say that personality affects culture. Individual affects culture. Means culture is nothing, only the individuals, group of, yes, individual traits. दोबारा क्या बोल रहा हूं? Individual traits. How the traits are arranged in complexes. How the complexes are in set pattern form of culture configuration. तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? इंडिविजुअल. कौन इंपॉर्टेंट है? पर्सनैलिटी, राइट. मार्केट में उल्टी हो जाएगी. इंपॉर्टेंट क्या है? कल्चर, नॉट दी. Now how culture affects the, yes, clear, चीज वही है. पर्सनैलिटी इन कल्चर माने तो एक कलेक्टिव इंडिविजुअल, तो कैसे इंडिविजुअल आपस में मिलकर, ये पैटर्न ऑफ कल्चर बता रहे ना, कि भाई एक इंडिविजुअल का ट्रेट, एक आदमी एक ट्रेट, सब कैसे आपस में मिलकर स्पेसिफिक फॉर्म में पूरी कल्चर बना रहे हैं, और उस कल्चर में उन हर ट्रेट का प्रभाव दिख रहा है. मींस अ पर्सनैलिटी अफेक्ट्स दी कल्चर, इज the amalgamation of personality. Culture is the sum total of personalities, right? तो यहां पर कल्चर क्या है? सम टोटल ऑफ पर्सनालिटीज. ये है तुम्हारा अपोलोनियन एंड डायनोसियन, राइट. ये उसकी पहली बात. इसने कहा कि ये अब दूसरी तरफ कौन सी? डायनोसियन. क्वाकेथन हैदा फ्रॉम अर्ली चिल्ड्रन एज, उनके मां बाप भी उतने कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव. सो द चिल्ड्रन आर वेरी एग्रेसिव. कॉम्पिटिटिवनेस इज ऑलवेज देयर. दे आर ऑलवेज सीक फॉर द रिसोर्सेज, वांट टू बी पावरफुल, वांट टू बी लीडर, वांट टू बी अ रिच पर्सन. सो द होल कल्चर इज स्ट्रेटिफाइड. सोसाइटी इज फुल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस. तो किसकी वजह से? पर्सनैलिटीज की वजह से. जैसे परिवार के लोग, जैसे मां बाप, वैसा ही बच्चा. मां पर धी, पिता पर घोड़ा, घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा. हमारे पे कहां पर है कि बेटी अपनी माता पर, पिता अपने, पुत्र अपने पिता पर. कि मां पर धी, धी मतलब बेटी, पिता पर घोड़ा, घना नहीं मतलब ज्यादा नहीं तो यस. So this two type of personality, Apollonian and these are the Greek gods, right? ये एक नीच का नाम सुना है? नीचे, नीचे का नाम सुना है? NISTHWZ, नीचे. बहुत बड़ा एक रोमांटिक नोवेलिस्ट हुआ था नीचे. उसको नीचे बोलते हैं. नी आधा था से. ही वाज अ वेरी ग्रेट फिलोसोफर. उसके बुझे ट्रेजेडी ऑफ ग्रीक गॉड्स, उसकी बुक हुआ करती थी. उसमें ग्रीक गॉड्स दो थे, एक अपोलोनियन था, एक डायनोसियन था. अपोलोनियन बहुत कूल काम देवता है, चांद का देवता, द गॉड ऑफ मून. एक तरफ डायनोसियन बहुत कॉम्पिटेंट, रिग्रेसिव, ऑप्रेस. तो उन दोनों को यहां तुलना की गई कि दो तरह की पर्सनालिटी होती है, एक होते हैं अपोलोनियन, दूसरे होते हैं डायनोसियंस. सो दिस इज द पर्सनालिटी अफेक्ट द कल्चर, राइट बच्चे? ये उसका दूसरा काम. अब इसके बाद इसका तीसरा काम, दैट वॉज
क्या है? Now she was on a mission. That was the time when war was about to come, as I told you. Everywhere the cloud of war was revolving on the sky. So, the USA gave her a mission to know the national character of Japanese people. Why they are so aggressive in war, otherwise they are very calm, keep quiet people. How this dual behavior is there. What are the reasons behind it? So on this stuff. Right. And this lady here gave a new concept to the anthropology called as content analysis method. A new concept given by Ruth Benedict. Because that was the time when war was there and no one was there to go to Japan to study the national character. So how to study the characters? So now she relied on the records, books written for the Japanese people, and then he went to the immigrants, Japan immigrants and families who lived in US, and on that basis she concluded the character of Japanese people and written a book called as Chrysanthemum Sword. So in this way she never gave to the field work. She never went to the field work, no field work, no research, no observation, and it was totally based on content provided by other people. So this is called content analysis method. इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था. अगर आपको ट्राइब के बारे में जानना तो जाइए, सर्च कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, उनके बारे में जानिए. इसने क्या किया, जो वहां के लोग आए थे, जो इमिग्रेंट्स थे, जो उनका रिकॉर्ड था, उसके थ्रू एनालिसिस करके कैरेक्टर बनाया. रूथ बेनेडिक्ट, we are doing that one. So a new method, content analysis method was started by Ruth Benedict. तो कई बार ये CM पूछ लिया था, what is content analysis method? A method developed by Ruth Benedict. In that method, she never went to the Japan or the field work. Yet on the basis of records, documents, and diaries plus a record through immigrants of Japan to America. उनके थ्रू उसने पूरा एनालिसिस किया और ये अपनी थ्योरी दी, क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड. राइट, क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड. हाउ द पर्सनैलिटी ऑफ जापानीज पीपल आर इन ए डुअल मूड. राइट, वन साइड ऑफ फ्लावर, समझे क्या, फायर एंड. सो मिक्सचर ऑफ फ्लावर एंड, ये यहीं से आया है, समझ में आया. ये जो लोग कंटेंट बनाते हैं ना, ये बहुत बहुत लंबा चौड़ा खेलते हैं. तो क्राइसैंथेमम एंड द, yes, flower for their own people, fire for rivalries, है ना, यही पुष्पा है. Chrysanthemum, flower, sword, fire, a mixture of flower and, yes, इस बार तो नया बड़ा था, wild fire. Boom. So all the movies, है ना, they look, movies nowadays, movie does not have any regional approach. It has a universal approach. एक दिन भर बैठे ये तो कंटेंट देखते रहते हैं. अपने घर बैठे बैठे जापानी कैरेक्टर बना लेगा. तुम गौर करके सोचो, कभी गए नहीं, फिर को कैरेक्टर बना दिया. किस तरह से हमारा इंटरव्यू क्या करता है, उसकी स्क्रिप्ट ला, इसकी स्क्रिप्ट ला, इसकी स्क्रिप्ट ला, एनालिसिस किया, लो नया कैरेक्टर पैदा कर दिया, फायर फ्लावर मिला दिया. इट हैपेंस ऑलवेज. हमारे पुराने सॉन्ग देखो, जुबी जुबी, तम्मा तम्मा, ऑल आर इंस्पायर्ड कंटेंट एनालिसिस मेथड. सो क्राइसैंथेमम एंड द स्वॉर्ड. नाउ टू रूथ बेनेडिक्ट, a Japanese children, we discussed what is culture, rearing of the, yes. So it is all about the system which started with the childhood
in Japanese people, right? Childhood and adolescent, they have two different phases of culture or rearing of child. Two different phases of rearing of child. At the childhood, at the age of childhood, they nurture as chrysanthemum, a flower. All the love, affection, cooperation, look aftering, complete nurturing, like a flower. But when they reach to adolescent, it become short. Strict discipline, live according to family tradition, right? And very important चीज, very strict is very strict toilet practices. हमारे ऐसा कुछ नहीं है, जहां मर्जी बैठ जाओ, मम्मा है ना। अब तो कोई नहीं, पहले तो खुली नालियां होती थी, शौचालय तो है ही नहीं, जहां शौच आ गया वही शौचालय। कोई था क्या? जहां शौच वहां शौचालय। अब तो जहां पर शौच वहां नहीं, बात तो पहले जहां शौच आ गया वही शौचालय, खुला बंद कुछ फर्क नहीं पड़ता। So we did not have specific toilet trainings to the person. हमारे ऐसा कोई स्पेसिफिक वहां तो छड़ी के साथ होता है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट। मैंने कल तुमको बताया था कि till 3rd grade in Japan they do not have any grading system, no exam, nothing else, only cooperation, no competition. So they start with the cooperation. अपना क्लास तुमको साफ करना है, अपना टॉयलेट भी यस तुमको करना है, and that's your joy, that's your life. So child under this thing, क्योंकि वो लोग बहुत डिसिप्लिन और उनका फैमिली ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा उनके फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए एक उम्र के बाद। तो उनका 13 साल का बच्चा जो होगा ना, वो कितना भी खुश दुखी होगा ना, वो अपने घर के फैमिली ट्रेडिशन क्या है बस वैसे रहेगा। यस, तो इतना ही, चेहरे पे कितना भाव लाना है वो डिपेंड करता है। वेरी स्ट्रिक्ट विद द थिंग्स। सो टू डिफरेंट रीडिंग ऑफ चिल्ड्रन, एक पर्सनैलिटी पैदा हो रही है जो एडल्टहुड में किस फॉर्म में जा रही है? क्राइसेंथेमम एंड दी शॉर्ट। तो एडल्टहुड डुअल पर्सनैलिटी नेचर, फ्लावर एंड फायर, दोनों साथ साथ। एट होम विद द फैमिली, वेरी कूल, काम, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, वर्कोहलिक। एट द वॉर फील्ड वेरी ब्रूटल, वेरी अग्रेसिव। वो सारी जो उसके अंदर वो भड़ास है अंदर जो फंसा हुआ है कि मैंने ही अपने साफ किए हैं, मुझे ही करना पड़ा, सब वही निकल जाते थे। तो टुकड़े टुकड़े करके खा जाते थे दुश्मन के। टुकड़े मतलब एक आदमी के 20-20 टुकड़े कर डालते थे, तभी तो वो चमके थे। कितने ब्रूटल ये लोग कैसे हो सकते हैं, राइट? व्हाई दिस एब्सर्ड बिहेवियर? जबकि जापानी बहुत शांत है, राइट? सबसे कम क्राइम रेट देखो तो जापान की है। फर्स्ट उनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज एंड देन जापान। बहुत कम आपकी रेट बनेगी, आपको कोई क्राइम के में अटेम्प्ट नहीं, फिर भी गोली मारी जाती है शिंजो आबे को, राइट? फिर भी गोली मार के हत्या की गई प्रधानमंत्री शिंजो आबे। शिंजो आबे की डेथ कैसे हुई? टॉयलेट प्रैक्टिस से ज्यादा हो गई थी। हम तो ये कहेंगे शॉट ज्यादा पावरफुल थी बताए क्राइसेंथेमम के। क्राइसेंथेमम की तो दोनों के फायर हो गया, वो टावर नहीं बना। So to Ruth Benedict, why the Japanese peoples have this type of character? It is due to their rearing in different form in different ages. इस वजह से ऐसा। एंड फिर ये बाद में हर जगह अप्लाई किया गया कि भाई किस जगह पर कैसी हो रही है उसे। नाउ इट्स ए थॉट जिसको तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो कि भाई किस उम्र में किस तरह पाला जा रहा है, उसके साथ आप उसका पर्सनालिटी बता दोगे कि आपकी उम्र में ऐसे पाला जाए, ऐसी पर्सनालिटी होगी, राइट? सो दिस वाज द वर्क डन बाय द रूथ। और एक नया थॉट जो उसने दिया वो था कंटेंट एनालिसिस मेथड। दिस वाज रूथ बेनेडिक्ट एंड हर कंट्रीब्यूशन। अब रूथ बेनेडिक्ट के बाद में तुम्हारे पास में सेकंड आती है, दैट इज यस मार्गरेट मीड।
Overseas Strategic Services, OSS. She was appointed by OSS. Or another US anthropologist of Culture and Personality School. And disciple किसकी रही? फ्रेंच बुआस. Yes, Margaret Mead. थ्री एंजल्स मूवी देखी थी ना? अरे वो कौन थी अमेरिकन स्पाई की? तीन वो, हाँ, चार्लीज एंजल्स, ये वही थी. मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, वहीं से आइडिया आया था. सो मार्गरेट मीड was the disciple of Franz Boas, again from American School of Psychoanalytical School, right? And उसका थॉट क्या कहता है? How अब ये क्या कहती है? हाउ कल्चर अफेक्ट्स दी, इसके हिसाब से नॉट पर्सनैलिटी, कल्चर अफेक्ट्स दी. अगर मैं हाउ हटा भी दूं तो कल्चर अफेक्ट्स दी. रूथ बेनेडिक्ट क्या कहती थी? यस, ये क्या कह रही? कल्चर अफेक्ट्स दी पर्सनैलिटी. नाउ टू वर्ड्स, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, कलेक्टिव वर्सेस इंडिविजुअल. अब कैसे कलेक्टिव रीडिंग कैसे बंदे के द इन्वायरमेंट, सराउंडिंग्स, रीडिंग, हेरिडिटी, ये सब इंपैक्ट कर रही है पर्सनालिटी को. अब बात आ गई सराउंडिंग्स की. पहले बात आ रही थी इंडिविजुअल से कैसे हो रही है. जैसे फादर मदर कैसे, वैसे ही बच्चा होगा, कैसे वैसे ही होगा. ये कहता नहीं, कैसे पाला है, उसके अंदर का इन्वायरमेंट कैसा था, वैसा बच्चा पैदा होगा. राइट, ये वो दुनिया है. तो चलो इस दुनिया में चलते हैं. नाउ द मार्गरेट मीड की तुम जो बुक्स बता रहा हूं उनको याद रखो. पहली उसकी बुक थी कमिंग एज ऑफ समोआ एंड ग्रोइंग एज ऑफ न्यू गिनी. इसने पहले समोन्स पे काम किया. इसका काम क्या था? इट स्टार्टेड विद वन थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी कंपेयर बिटवीन एडोलेसेंट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड यूएसए. उसने कहा कि कैसे इंग्लैंड और यूएसए के अंदर जो एडोलेसेंट बिहेवियर है वो एक दूसरे से अलग है. पहला काम इसका ये था, राइट? इंग्लैंड एंड यूएसए. एक तरफ ब्रिटिश स्टाइल था जीने का, एक तरफ अमेरिकन स्टाइल मोर कॉम्पिटिटिव है, ओपननेस है. तो बच्चे में स्ट्रेस ज्यादा होगा, कुछ आता कंपटीशन है, स्ट्रेस है, डिफरेंट कल्चर पीपल है, तो उसमें बच्चे पे स्ट्रेस ज्यादा है. कल्चर के अंदर कंपटीशन ज्यादा है. दिमाग में डायनोसिन रखो, राइट? तो उनके जो एडोलेसेंट है ना, चाहे वो गर्ल्स है, तो यूएसए की जो गर्ल्स है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव, क्योंकि उसको लोगों से बचना है, बहुत ज्यादा टेंस, बहुत ज्यादा अवेयर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है उस एज में. बिकॉज चिल्ड्रन ओवर, चाइल्डहुड ओवर, एडल्टहुड येट टू कम. बिटवीन दिस स्पॉट इट्स अ लाइफ व्हेन यू रीच अप टू द एडल्टहुड. तो उस समय कैसे अपने आप को वहां तक पहुंचाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. नाउ द रोल ऑफ कल्चर टू कन्वर्ट ए चाइल्ड इनटू अ एडल्ट. दिस इज द स्पॉट एडोलेसेंस. 14 से 18 का जो तुम्हारा एज है, ये एज होता है तुम्हारा एडोलेसेंट का, राइट? द एज ऑफ एडोलेसेंट. इस एज में तुम्हें नई चीजें अडेप्ट करनी है, राइट? तुम्हें इस समय व्हाट इज अबाउट योर बॉडी चेंजेस, मींस बायोलॉजिकल चेंजेस. Second, the change in thought and personality, change in emotions, change in things, change in people, the attitude of people towards you. Now you are no more a girl. You are growing like a lady. तो लोगों का तुम्हारे प्रति बिहेवियर और हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट थिंग्स लाइक सेक्स. हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट सेक्स एजुकेशन है तुमको.
क्या होता है, कैसे होता है? क्या तुम्हें वो सब चीजें बताई गई है जो एक एडोलसेंट को पता होना चाहिए अबाउट लाइफ, अबाउट बॉडी? इंडिया में बड़ा टैबू है इस चीज का। पेरेंट्स नेवर सेज दिस थिंग टू अ पर्सन। तो बच्चे को पता ही नहीं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर देम फॉर द एडल्टहुड, राइट? आपको पॉक्सो लाना पड़ा, आपको बहुत चीजें लानी पड़ी, बच्चे को बताना पड़ा बैड टच एंड गुड टच। नाउ इट स्टार्टेड। मी टू तो बहुत बड़ी उम्र में, बैड टच गुड टच आप लेके आ रहे हो, अब चीजें सारी आ रही है, जेंडर एजुकेशन, बैड टच, गुड टच, व्हाट अबाउट थिंग्स। सो उन्होंने कहा कि इन डिफरेंट कल्चर वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट. In that environment, that cultural environment affects a lot to the personality of person. तो उसने पहले ये अध्ययन किया और फिर उसने अध्ययन किया किनका? That is the Samoans woman. तो Samoa tribe है, तो उसकी जो adolescent girl है, now a comparison between Samoans and USA girl. She was from USA. तो उसने क्या दोनों की एज देखी 13 to 14. उस एज में कैसे दोनों की अलग अलग कल्चर एक अलग अलग पर्सनैलिटी को पैदा कर रही है. Samoans, an open society, not so much regulation on premarital sex, openness, cooperation, right, and conversation regularly between parents and other people with the adolescents. So what happens in the Samoans till childhood, a very strict regulations are there for children, boys and girls. They do not sleep all together at one place, अलग अलग जीते हैं. But when they grow as an adolescent, उनको साथ साथ भेजा जाता है फिशिंग के लिए, एक्सपीडिशंस के लिए. बट एक मोरालिटी होती है कि आप दोनों एक साथ सोएंगे नहीं. इट्स ए मोरालिटी. और उनको सारा पता होता है एंड दे हैव ऑल दोज अवेयरनेस अबाउट द सेक्सुअल एक्टिविटीज. प्रीमेरिटल सेक्स उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बट दे नो, बिकॉज दे नो दे डू नॉट कमिट. अगर बच्चे को पता था कि एक चीज एक दिन होनी है इन एडल्टहुड, तो आज करना ही क्यों? सो दे पीपल आर वेरी वेल अवेयर. सो व्हाई दे आर वेरी काम, कूल, एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड जॉयस एट दिस पर्टिकुलर एज. In contrast to like in USA, and girls are very much tensed, psychic frustrations. आपको इतना बताने वाला नहीं है, परिवार में नए चेंजेस बता नहीं रहे, तो वो और ज्यादा कि दोनों की पर्सनैलिटी में फर्क देखो. तो जब एक समोन से एडल्ट तक पहुंचेगी ना, वो वेरी कालकून कैरेक्टर से. क्यों? दैट इन्वायरमेंट ऑफ कल्चर प्रोवाइडेड देम दैट फ्रीनेस, दैट लर्निंग एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड थॉट, कि जिससे वो आराम से ग्रो कर रही है. एक तरफ जो कल्चर है वो बच्चे को रेस्ट्रिक्टेड के साथ में है, ठीक है. एक बच्ची को फ्रस्ट्रेशन है, हर चीज बताई नहीं जा रही है, उनको पता नहीं है. प्री मैरिटल सेक्स वहां पर एक टैबू की तरह हो गया, तो बच्चे को पता ही नहीं करना क्या है. एंड बॉयज गर्ल्स सेपरेट है, वो तो दिक्कत है. बॉयज को पता नहीं गर्ल्स के प्रति एटीट्यूड क्या है, गर्ल्स को पता नहीं बॉय के साथ में कैसे बिहेव करना है, कहां पे रुकना है, व्हाट द थिंग आर वी आर नॉट गोइंग टू डू. तो ये सब चीजों ने यहां फ्रस्ट्रेशन पैदा किया. तो ये बताता है हाउ डिफरेंट कल्चर सर्कल्स, different cultural phenomena affect the personality of children. और children में कौन mainly? Adolescents. Right? वो सेम चीज जो इनके समझ के जाती है कि वो लड़कियां ज्यादा अलग तरह से है. वही सेम बात यूएसए की लड़कियां ज्यादा, क्योंकि मिक्स रेस कल्चर प्लस द कॉम्पिटिटिवनेस प्लस बिहेवियर प्लस दो, ये सब करके यूएसए में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है. तो उसने कहा कि आप कंपेटिटिव करके देखो. तो उसने सबसे अच्छी लड़कियां कहा कि बताई थी समोन्स की. समोआ आइलैंड उसके पास है, अमेरिका के पास में बिटिया तुम्हारी. हाँ समोन्स. एक बुक आती है, एक इसकी वो आती है डॉक्यूमेंट्री, कमिंग एज ऑफ समोआ. तुम लिख लो, रूथ बेंडिक्ट, मार्गेट मीड, कमिंग एज ऑफ समोआ, मार्गेट मीड. वो समोन्स को खोल देगी पूरा. 18 मिनट का 46 मिनट्स का बड़ा अच्छा वीडियो है, पूरे समोन्स के बारे में उसने लिखा है, कमिंग एज ऑफ समोआ. सो अब एक बात देखो, व्हेन दीस समोन्स विल अचीव द एडल्टहुड, एक नया पर्सनालिटी पैदा होगा ना. उसके पीछे कारण कौन है? द कल्चर इन्वायरमेंट गिवन बाय पीपल, जिसने उस एडल्टहुड में एक पर्सनालिटी को नया पैदा किया. और सेम विद अमेरिकन्स. अब व्हाई सो मच डाइवोर्स केसेस आर देयर? Because people are not satisfied with the things. क्योंकि जिन परिस्थितियों से वो गुजरे हैं, तो वो किसी बर्डन में पड़ना नहीं चाहते, कॉम्प्रोमाइज है नहीं, लोनलीनेस ज्यादा है, डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं. सो उनके फैमिली ज्यादा सेटल
क्योंकि वो एडोलेसेंट का एज जब समझना चाहिए था तब है नहीं। फादर मदर अपनी दुनिया में व्यस्त है और समोस में पूरा कल्चर जो है उनको नर्चर कर रहा है। हर कोई उनको शिक्षा दे रहा है, हर कोई पूछा कहां से आ रहे हो, क्या जा रहे हो, उनको साथ रहने की इजाजत दी जा रही है ताकि एडल्टहुड में वो साथ रहने के समझ सके कि करना क्या है। राइट? हमारे तो बस दो वर्ड है, जीएफ बीएफ। कोई अलग वर्ड है या भैया? डू हैव अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल? कैन वी एक्सेप्ट कि एक बॉय गर्ल साथ होते हैं कैजुअली, नो फ्रेंड्स नथिंग एल्स? वर्ड्स हमारे जरूरी हो गए ना, एंड इन दोज वर्ड्स तुम्हारा सारा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। BFF, BF, GF, what all this? Why? Can't you live together? क्या क्लास में आप ऐसे बैठ नहीं सकते क्या? Can't we live like a student? Can't we live like a member of society? No. हमें वर्ड्स देने पड़ते हैं, आइडेंटिटी बतानी पड़ती है, ये तुम्हारा कौन है। और हमारे में इस एज में ज्यादा फादर का बेटी का मतलब इस तरह की कभी लेंथ कन्वर्सेशन नहीं होता। विद द एज ऑफ टाइम मदर की तरफ इधर बात है। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये बताती है कि नॉट बायोलॉजी, कल्चर इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्चर, नॉट बायोलॉजी। बायोलॉजी दोनों की सेम है ना, बट दोनों डिफरेंट कैसे हुए? इफ बायोलॉजी वॉज द फैक्टर ऑफ डिटरमाइन, then they both should have the same thing. ये क्या बताता है? नॉट बायोलॉजी। क्या जरूरी है? कल्चर। कल्चर मेक्स डिफरेंसेस, कल्चर शेप्स द पर्सनैलिटी, नॉट बायोलॉजी। So it discarded the biological determination that with the age changes are there. No, with the culture changes are there. Clear? With the culture, not the biology. Culture determines the adulthood. कुछ तो लोग बच्चे बने ही रहते हैं पूरी उम्र, पहले पापा संभालते फिर बीबी संभालती, वो वही बने रहते हैं। इनडिसाइसिवनेस, नो डिसीजन। तुम देखा होगा कई लोगों में बचपन से ऐसे बने रहते हैं, ये तो बेचारा भोला है, वो बोले के तो ठप्पा लगा देना परिवार ने, वो जिंदगी भर ऐसे चलते रहते हैं। तो नॉट द बायोलॉजी। और कुछ छोटी उम्र में वेरी स्मार्ट, वेरी, वो डिपेंड करता है हाउ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट यू हैड। सो दिस इज द थिंग व्हाट वी से। आपका कल्चर बहुत बड़ा, हमने कहा ना पर्सनालिटी का इफेक्ट कौन कर रहा है? एनवायरनमेंट। सेकंड कौन है? कल्चर। थर्ड कौन है? आइडेंटिटी। फोर्थ इज एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। सो हाउ कल्चर शेप द पर्सनालिटी। समझ आ गया? सेम उसने क्या किया, द सेकंड एक्सपेरिमेंट उसने किस पे किया? एंड ट्राइब कॉल्ड एज मानुस। और ये कहां पर है? और वही सेम बात एडोलसेंट वाली। द ग्रोइंग वर्ड ऑफ न्यू गिनी, ग्रोइंग वर्ड ऑफ न्यू गिनी बुक लिखी थी, ग्रोइंग वर्ड ऑफ न्यू गिनी। इसमें मानुस, मानुस टाइप है। न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, सेम यही कि एडोलसेंट में क्या बिहेव का फर्क पड़ता है, वो सेम चीज। ट्राइब का जो कल्चर का इन्वायरमेंट है वो बहुत इस पे फर्क पड़ता है। इसी पे इसने काम और किया। दिस वाज द टू बुक्स। एक तीसरा काम इसने किया कि अब काम करते हैं हाउ कल्चर इफेक्ट्स। तो उसने 3 अलग अलग ट्राइब देखी, इन्वायरमेंट में रह रही है, फिर भी डिफरेंट बिहेव कर रही है। राइट? तो वो 3 ट्राइब कौन कौन सी ले रही है? हाँ, सेम हाउ कल्चर। अब वो यही काम उसने क्या किया, सेम चीज वो करिए। नाउ सी अगेन सेलेक्टेड 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेम इन्वायरमेंट, राइट? जिसमें उसका नाम था सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 डिफरेंट सोसाइटी। नाम क्या? सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 डिफरेंट सोसाइटी। बुक के लिख लो, सेक्स एंड टेम्परामेंट्स। हाँ, सेक्स एंड टेम्परामेंट्स इन 3 डिफरेंट सोसाइटीज।
सेक्स एंड टेम्परामेंट. सेक्स मीन्स नॉट सेक्स, सेक्स मीन्स जेंडर. मेरी बात को ध्यान रखना, सेक्स मीन्स जेंडर. सेक्स मीन्स जेंडर. बायोलॉजी में वर्ड लेते हो और एक सोसाइटी में लेते हो, अलग अलग है. यस. इन 3 डिफरेंट सोसाइटीज. जेंडर वर्ड डिनोमिनेशन है सेक्स का, राइट. एक वर्ड आता है सेक्स, एक होता है जेंडर. जेंडर सोसाइटिकल वर्ड है, सेक्स बायोलॉजिकल वर्ड है. बायोलॉजी में जेंडर वर्ड यूज नहीं करते. जेंडर वर्ड कहां यूज कर रहे हैं? जेंडर इनइक्वालिटी वर्ड किसका है? बायोलॉजी का है कि सोसाइटी का है? यस. यू विल नेवर फाइंड सेक्सुअल इनइक्वालिटी, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन. व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी? So it is a word which represents the inequality, because inequality is among society, not biology. Biology we have 2 entities. So their word is sex differentiation, male and female. Gender means inequality. तो जहां वर्ड जेंडर यूज किया जाए ना, जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, इट्स ए सोसाइटल वर्ड, कल्चरल वर्ड, बट सेक्स इज ए बायोलॉजिकल वर्ड. तो ये बात कर रही है सेक्स एंड दी temperaments, how different people behave differently, how temperament is different in a different societies. तो 3 सोसाइटी लेती है. कौन कौन सी ले रही है? नाम याद रखना, यहां पे नाम इंपॉर्टेंट है. पहला नाम क्या है? क्या नाम है? अरापेस. मुंडा गेमोर. यस. 3 डिफरेंट सोसाइटीज, 3 डिफरेंट टाइप्स मान लो, एक ही बात कह दो. अरापेस, मुंडा गेमोर एंड स्कैम्बोली. राइट. 3 डिफरेंट है. ज्योग्राफिकल एनवायरमेंट है, फुल ऑफ रिसोर्सेज. एनवायरमेंट फुल ऑफ रिसोर्सेज. एनवायरमेंट लेस ऑफ रिसोर्सेज. अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी. एक नया नाम और आ गया, मैट्रिलिनियल में लिख लो, स्कैम्बोली. मैट्रिलिनियल सोसाइटी, राइट. अब देखो अरापेस में क्या होता है. अरापेस में दे फेवर जेंडर इक्वालिटी, सेक्स इक्वालिटी. नो सेक्स मतलब जेंडर इक्वालिटी पे बेस्ड है. अरापेस में मेल एंड फीमेल, बोथ आर इक्वल, काम, कूल, joyous, enjoy their life equally, right? Equally enjoy their life. Clear? मुंडा गेमोर वेरी मच कॉम्पिटिटिव, अग्रेसिव, बात बात में कूटना, लड़ना, आज तलाक कल खुलाक, डेली डाइवोर्स, डेली लड़ रहे हैं, सेमस है, दिमाग खराब है, पॉलीगेमस सोसाइटी है, एक 10-10 पत्नियां हैं, उनके 20-20 बच्चे हैं, कुट रहे हैं आपस में अधिकारों के लिए. द सेम थिंग इज वेरी कॉम्पिटिटिव, वेरी एग्रेसिव, राइट. रिसोर्सेज कम है, ज्यादा रख लिए लोग, तो इस वजह से क्या हो रहा है, पूरा कल्चर खराब हो गया, तो उससे नई पीढ़ी वैसी पैदा हो रही है. और तीसरा कौन है? स्कैम्बोली. स्कैम्बोली कैसी सोसाइटी? दैट इज मैट्रिलिनियल सोसाइटी. अगर मैट्रिलिनियल सोसाइटी तो डोमिनेंट कौन होगा? यस, फीमेल. डोमिनेंस एंड मेल आर सप्रेसिव. मैं ऐसे मैं इस तरह बता रहा हूं, ठीक है ना. फीमेल डोमिनेंट, मेल आर सप्रेसिव. आप इसको ऐसे मत लीजिए, ठीक है. फीमेल आर डोमिनेंट एंड मेल आर सप्रेसिव. So it is the society, it is the culture, right, which give different type of personality. ये थोड़ा बहुत geographical determinism में है. If you have plenty of resources, no need to fight. Everybody is getting everything, right? तो लड़ना क्यों है? तो सब joyful, plenty है. अब आपके पास प्रॉब्लम क्या कर लिया आपने? हेलो दीपक जी, अब तो कॉलेज बंद हो गया होगा. कॉलेज में लेके आया क्या मीरपुर में? तो मैं काम करता हूं ना, मैं अपने वहां पे जो मेरा रह रहा है ना भतीजा, उसको नंबर देता हूं, वो आपसे बात कर लेगा. ठीक है, ठीक है. ओके, सो 3 different society. So what she says, on the basis of environment,
On the basis of environment, culture is there. And on the basis of culture, personalities are there. How male and female behave in a particular society, it is based on the culture, and culture is based on environment. So how environment creates different type of personalities in a society. तीनों एक जगह रह रही है, रिसोर्सेज अप डाउन हुआ, मेटेरियल सोसाइटी हुई तो ये डोमिनेंट हो गया, कम हुए तो कूटने शुरू हो गए, बराबर हुए तो बड़े प्यार से रह रहे, ये अपोलोनियन हो गए, डायनोसियन हो गए, राइट? द सेम थिंग. सो दिस वाज द स्टडी मेड बाय द मार्केट मीड. तो ये दो हमारे मेन हो गए. कल हम बचेंगे लास्ट तीन को पकड़ेंगे, बहुत छोटे छोटे, वो लिंटन, कार्नेट. हाँ, क्योंकि वैसी कल्चर डिफरेंट हुई ना, तो जैसी कौन सी, यही तो है तीनों. अरब, हाँ हाँ, अरापेस, मुंडा गेमोर, स्कैम्बोली, क्योंकि उनकी कल्चर वैसी हो गई. एक को प्लेंटिफुल रिसोर्सेज मिले, जहां रह रहे थे ये ज्यादा है, वहां पे मान लो नदी किनारे रह रहे, राइट? तुम रह रहे हो गहरे जंगल में, वो रह रहा है पड़ोसी गांव में. अब तो जगह वही ना, कौन कहां बसा हुआ है, राइट? अब जो प्लेंटिफुल है वो खुश है, सब कुछ मिल रहा है, मेल फीमेल दोनों को बराबर मिल रहा है, डोमिनेट है. एक जगह जहां पर कम है, पॉलीगेमी हो रही है, किसी ने अधिकार पकड़ लिया तो कुटने, और एक जगह क्या हो गया, मेटेरियल सोसाइटी है तो फीमेल डोमिनेंस में. तो हाउ इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी शेप दी पर्सनैलिटी, समझ गए? सोसाइटी, हाउ कल्चर डिफरेंशिएट दी पर्सनैलिटी, कि एक सप्रेसिव पैदा हुए, एक डोमिनेंस पैदा हुई. कल्चर सेम है ना, दो अलग अलग पर्सनैलिटी कैसे बन गई? कल्चर की वजह से, कि जो फीमेल पैदा होगी वो डोमिनेंट कैरेक्टर की पैदा होगी, जो मेल पैदा होंगे वो यस बराबर इक्वल डोमिनेंट, इक्वली डोमिनेंट, दोनों को बराबर मिल रहा है, रिसोर्सेज इक्वल डोमिनेंट, इक्वलिटेरियन सोसाइटी, इक्वलिटेरियन. सेकंड स्टडी, काम, कूल, डिसिप्लिन, जॉयस, इक्वली एंजॉय ऑल द थिंग्स, राइट? ओलिगोआर्की, वर्ड क्या यूज करेंगे? ओलिगोआर्की. उधर मैट्रियार्की, राइट? और इसमें स्ट्रेटिफाइड,